Hello friends, welcome back to the channel. This is the route we'll be seeing today from Kullu to Bajaura, and then in the end we will have a look at Ott Tunnel. This is the first video in the series from Kullu till Jibhi and then Jalori Pass. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर चैनल पे आपका स्वागत है। और जो अभी जैसा आपने शुरू में देखा, ये जो वीडियो है ये कुल्लू से लेकर के और बजौरा तक, मामू ढाबा तक का है और फिर ऑट टनल का है। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम कुल्लू से जिभी और फिर जलोरी पास तक का सफ़र तय करेंगे। For your information, I have mentioned the speed at which the video sections are being played at, whether it's 1x or 2x, so that it's easier. आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने वीडियो में ऊपर इनकी स्पीड मेंशन कर दी है, कौन सा वीडियो सेगमेंट 1x स्पीड पे है, कौन सा 2x स्पीड पे है। If you are new to the channel, do not forget to subscribe. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। This series may go on for 4 or 5 more videos after this. And this is the diversion for Kullu town and for Mandi on which we'll proceed. ये सीरीज़ आगे 4-5 और वीडियोस तक चलेगी और जैसा अभी आपने देखा वो एक डाइवर्जन था जहाँ से आप कुल्लू के लिए दाएं मुड़ सकते हैं और मंडी या चंडीगढ़ दिल्ली के लिए आप सीधा इस बाईपास से जा सकते हैं। For those of you who've traveled towards Kullu and Manali before the pandemic started, this route was under construction. It still is in some parts, but in these last 2 years, most of the portions have been completed. आप में से जो लोग कुल्लू मनाली 2 साल से पहले आए थे उनके लिए उनको याद होगा ये रास्ता बन रहा था और अब काफ़ी हद तक बन गया है। अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन इस पे चल रहा है। This is a highway. This is a bypass for Kullu town so that you don't have to go through the narrow lanes and you bypass all of that and directly come towards Manali. कुल्लू शहर के लिए ये एक बाईपास के रूप में बनाया गया है ताकि कुल्लू की पतली गलियों में से होकर के आपको ना आना पड़े और आप अच्छे हाईवे से सीधा बजौरा के बाद मनाली की तरफ प्रवेश कर सकें। As I was telling you, some sections of this road still haven't been completed, and after this drive, when we recently went towards Dehradun on this highway, we saw a few sections of landslide after the first spell of rain this monsoon, so it might take time to complete. जैसा मैंने पहले भी बताया, इस हाईवे के सारे हिस्से अभी पूरी तरह नहीं बने हैं और जो बन भी गए थे उनमें अभी मॉनसून की शुरुआती बारिश जब हुई तब कुछ हिस्से में लैंडस्लाइड हो गया था, तो वो भी अभी ठीक होने हैं। कुछ समय लगेगा इनको सेटल होने में। So as you can see from the date stamp, this video was shot on 10th of April. And at this time we were 3 adults and my son with luggage for the weekend, and I believe AC was off because April was still a little cold. इस समय गाड़ी में हम 3 बड़े और एक मेरा 4 साल का बेटा, हम 4 लोग थे और जहाँ तक मुझे याद है शायद एसी इस समय बंद होगा क्योंकि अप्रैल थोड़ा ठंडा महीना रहा इस साल। This highway will end at a T point, which will be another screenshot as you will see. From if you take a left turn there, you will
proceed on towards Manikaran and Kasol. And if you take a right, you go towards Bajora and then down towards Ot, Mandi, and you can either take a left again for the Tirthan Valley and GB, or you can go right and proceed towards Pando and then Mandi, going on down towards Shimla or Chandigarh or Delhi. ये हाईवे अभी आगे एक टी पॉइंट पे ख़त्म होगा, जहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाएं तो आप कसोल और मणिकरण की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप दाईं ओर जाएंगे तो आप बजौरा होते हुए भुंतर बजौरा होते हुए औट पे चले जाएंगे, और औट से फिर से अगर आप उल्टे हाथ की तरफ मुड़ें, बाईं ओर मुड़ें, तो आप तीर्थन वैली और जीभी जलोरी पास की तरफ जा सकते हैं, या दाईं ओर मुड़ के आप पंडो, मंडी और आगे चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला की ओर जा सकते हैं. दिस इज़ दैट टी पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोड्स डाइवर्ट. ये वो टी पॉइंट है जहाँ से रोड्स अलग अलग जगह मुड़ जाती हैं. This section would probably be completed soon, and this proceeds on towards the old Manikaran bridge, and it's I think very close to the Bhuntar airport. ये जो सड़क का सेक्शन है बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा मुझे लगता है, और ये पुराने मणिकरण ब्रिज पे जा कर के ये रोड का सेक्शन ख़त्म होता है, और उसी के पास जहाँ तक मुझे मालूम है भुंतर का एयरपोर्ट भी है. बट वी वोंट बी लुकिंग एट द I won't give a screenshot of the airport. I have instead given a screenshot of where I will end the video on this part, that is Mamu Dhaba, a very reasonable rate, a very good restaurant. We've had a chance to have meals there, veg and non-veg, more than once, and as you will see, I've given them a very good rating on as a Google local guide. भुंतर एयरपोर्ट पे मैं इस वीडियो के सेक्शन को ख़त्म नहीं करूँगा, ना ही उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगा. उसके बदले मैं आपको ये वीडियो का सेक्शन मामू ढाबा पे ख़त्म करूँगा, जो कि एक बहुत बढ़िया ढाबा है. हम एक बार से ज़्यादा वहाँ रुके हैं और वेज और नॉन वेज दोनों हमने वहाँ पे खाया है, और बहुत ही अच्छा खाना हमें वहाँ मिला था, बहुत ही टेस्टी था. और जैसा आप बीच में शेयर्ड स्क्रीन में देखेंगे, मैंने बहुत अच्छा रिव्यू भी उनको दिया था, क्योंकि मैं एक गूगल लोकल गाइड भी हूँ. You can admire the beauty of Kulluvi architecture, the Kath and Kuni architecture, which it is called, in the temples that fall on the way. कुल्लू की तरफ काठ कुनी आर्किटेक्चर करके जो बनावट है घरों की, मंदिरों की, उसको आप सड़क के साइड में बने इन मंदिरों में और कुछ पुराने घरों में निहार सकते हैं, देख सकते हैं. For those of you who are new to the channel, I would request you to hit the subscribe button and do hit that like button if you like this video, and share it with others. जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है आप ज़रूर से सब्सक्राइब बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक भी करें, और आगे औरों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें.
Here on the left you can see one of the temples in Kathkuni architecture. इधर बाईं ओर आप अभी देख सकते हैं एक मंदिर बना था जो उसी काठकुनी आर्किटेक्चर पे बनाया हुआ था. And here on your right is Mamu Dhaba. I'll just show you the front view also from this parking lot. और ये सामने आप देख सकते हैं ये मामू ढाबा है और यहाँ पार्किंग लॉट से आप इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं. मैंने इसको लगभग 4 महीने पहले ही 5 स्टार रेटिंग दी है और ये मेरा रिव्यू था. Now I've skipped the off-roading sections which were not completed and we've come quite close to Ott. There is a special reason why I've put this part up in the video. मामू ढाबा से आगे का रास्ते में मैंने बहुत सा हिस्सा काट दिया है इस वीडियो में से और ये जो हिस्सा है ये ख़ास तौर से रखा है मैंने जानबूझ करके. That truck you see which is going up front and the Innova, after a while I've even mentioned that as a text over my bonnet, but while I was overtaking that truck, the Innova was at quite some speed and even I was, and I hit my underbody protection guard really bad, and since after that the protection plate started rubbing against the engine and producing a very coarse, very harsh noise all the way, especially in first and reverse gears. जो ये ट्रक और इनोवा आप देख रहे हैं इस ट्रक को ओवरटेक करने में एक ये गड्ढा सा आएगा. अभी आप देखेंगे गाड़ी एकदम नीचे, ये यहाँ पे गाड़ी एकदम ओवरटेक करते हुए, क्योंकि स्पीड में थे हम और मैंने ध्यान नहीं दिया, इनोवा वाला स्पीड में निकला, मैं भी स्पीड में निकल गया और इस समय गाड़ी का जो नीचे इंजन का प्रोटेक्शन कवर है वो बहुत ज़ोर से बजा और उसके बाद पूरे स्ट्रिप में ये इंजन गार्ड नीचे इंजन के साथ लग के आवाज़ करता रहा. और ख़ास तौर से फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर में शुरू में जब इंजन्स में ज़्यादा वाइब्रेशन होती है उस समय बहुत गंदी इसकी रगड़ने की आवाज़ आ रही थी. I eventually got it sorted. I had to take the plate out. I had to get it straightened, hammered out, and then fit it back, and it's been working perfectly. इसके बाद मुझे इंजन गार्ड को नीचे से निकलवाना पड़ा और थोड़ा सीधा करवाना पड़ा, ठोकना पड़ा ताकि दोबारा वो इंजन के साथ नीचे से ना लगे. और अब ये ठीक है, बट फॉर दैट टाइम बीइंग इट वाज really scary because we didn't know what damage had happened, and as you can see we just continued on towards GB that day. उस दिन हमें बहुत डर लगा बहुत ज़ोर से क्योंकि आवाज़ आई थी और हमें नहीं पता था इंजन में नीचे क्या डैमेज हुआ है. और जैसा आप देख सकते हैं हम चलते गए और GB तक जाने के बाद हमने तब तक हमें पता नहीं था कि क्या डैमेज हुआ है क्या नहीं हुआ है. दैट स्क्रीनशॉट वाज फॉर दिस ऑट टनल. सो कुल्लू वैली हैज़ टनल्स ऑन 2 of its ends. One is the now world famous Atal Rohtang tunnel, which is a engineering marvel and it's really beautiful, really smooth. And on the other hand towards Mandi is this Ott tunnel, which you can see is very crude. It's all muddy and mucky and this dust keeps spraying on from the cars in front of you and your windshield keeps getting dirty. तो जो अभी स्क्रीनशॉट आपने देखा था वो ऑट टनल के बारे में था. और कुल्लू ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसके 2 छोरों पे आप देखेंगे टनल है. एक अभी जो बना लाहौल स्पीति की तरफ वो दुनिया में बहुचर्चित अटल रोहतांग टनल है जो कि इतने अच्छे से बनाया गया, इतनी ऊंचाई पे बनाया गया और उसका रास्ता अच्छा है, उसमें वेंटिलेशन अच्छा है. और दूसरी ओर मंडी की तरफ ये ऑट टनल है जो
जिसकी दीवारें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से नहीं बनी हुई, पत्थरों से पत्थर साफ नज़र आते हैं। और ना केवल पत्थर, इसमें या तो हमेशा धूल भरी होती है या ऐसे पानी पड़ा होता है जिसकी वजह से कीचड़ उड़ उड़ के आपके गाड़ी पे, आपके शीशे पे आके लगता रहता है और आपकी विजिबिलिटी ख़राब करता रहता है। But there is a bypass. You can go from Bajora via Kandi, Katola, Kamand and go towards Mandi, but that is a very narrow road, and if you are not comfortable driving in the narrow hilly roads, I would recommend you to still take the Ott Tunnel road. इससे बचने के लिए आप एक और रास्ते से जा सकते हैं जो कि बजौरा से कांडी, कटौला, कामंद होते हुए आप मंडी जा सकते हैं, लेकिन वो एक पतली पहाड़ी सड़क है और अगर आप पहाड़ों में चलाने के ज़्यादा आदी नहीं हैं, आपको डर लगता है पतली सड़कों से, तो मेरा यही कहना होगा कि आप ऑट टनल के रास्ते से ही जाएं। थोड़ा ख़राब है बट चौड़ा है और उतना रिस्की नहीं है। So I would like to thank you for being with me in this video. Do stay tuned for another update by next week, I guess, and in which we'll start the part 2 of this video going from Ott Tunnel and up to GB. धन्यवाद वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, और अगले हफ्ते हम इस वीडियो के अगले पार्ट को देखेंगे जिसमें हम ऑट टनल से जीबी तक का जो सफ़र है उसको तय करेंगे। नाउ आई वुड ट्राई एंड अपलोड अ वीडियो एवरी वीक एंड ट्राई एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगले कुछ हफ्तों में मेरी कोशिश होगी कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डाल के वीडियोस को अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ। So do stay tuned, and as I said, do subscribe to the channel and hit the like button. Share it with your friends and family. तो जैसा मैंने पहले भी कहा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीक। बहुत धन्यवाद, और अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।